قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. تمام قسم کی تعریفات بڑائی اور بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور جس کے فضل و کرم سے، جس کی توفیق سے، جس کی منشا سے، جس کے حکم سے درس قرآن منعقد ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی رحمت ہم لوگوں کے ساتھ شامل حال رہی تو یہ اپنے عروج کو جائے گا. اور اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم تو ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. گزشتہ ہفتے درس میں سورہ آل عمران آیت نمبر 154 تک کی بات مکمل ہو گئی. آج انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 155 سے ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے. جیسا کہ گزشتہ ہفتے شروع میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی اور آج بھی رکھی جا رہی ہے کہ یہ جو سلسلہ درس قرآن کا ہے، یقین جانے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کے کاندھے پر رکھی ہوئی ہے اور اس کو نبھانے کے لیے ہم میں سے ہر کوئی اپنا مکمل تعاون اور جد و جہد کر رہا ہے. ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہمارے تعلق میں ہے، ہمارے ریلیشن میں ہے، چاہے دوستانہ تعلقات ہو یا رشتہ دار ہو، جو بھی ہو ملنے جلنے والے، ان سے ہم ملیں اور ان کو دعوت دیں. کیونکہ اللہ نے کہا نا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ان میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائے. تو ہم کوشش کریں کہ اس جماعت میں شامل ہو جس جماعت کا کام ہے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف دعوت دینا اور بلانا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ہر کوئی جو آن لائن ہے وہ بھی، اگر آف لائن ہے وہ بھی اپنے طور پر ہر ممکنہ کوشش کرے. یقین جانے کہ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو مرنے کے بعد قبر میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے. سورہ آل عمران آیت نمبر 155 میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، بے شک تم میں سے جن لوگوں نے جس دن دو جماعتیں آپس میں لڑائی کے لیے اکٹھا ہوئی تھی پیٹ پھیرا، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، پھر شیطان نے ان کو ان کی بعض بدعمالی کی وجہ سے پھسلا دیا. یہ واقعہ بھی غزوہ احد کے تعلق سے بیان کیا جائے. اس سے پہلے بھی بہت ساری آیات گزر گئی ہیں جو غزوہ احد کے تعلق سے بیان ہوا، اور مسلسل غزوہ احد کے بیان کرنے کا ایک واضح مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی بہت ساری خامیوں اور کمیوں کو اجاگر کیا. اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے کہ ان میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض آخرت چاہتے تھے. اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا کہ صحابہ جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ آخرت کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے، ان کا مقصد کیا تھا؟ آخرت حاصل کرنا. لیکن اللہ نے بیان کیا کہ نہیں، ایسا نہیں تھا. شروع میں غزوہ احد شکست کی وجہ یہ بنی کہ صحابہ کے اندر ایک بعض ایسے لوگ تھے کہ دنیا چاہتے تھے. دنیا کس اعتبار سے؟ ہم لوگوں کی طرح دنیا نہیں. جنگ کے جو حالات تھے ایسا لگا کہ کافر شکست کھا گئے اور مال غنیمت جو ہے اکٹھا ہونے لگا. تو بہت سارے صحابہ جو پہاڑی پر تیر انداز مقرر کیے گئے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں، تو آدھے جو 25 صحابہ تھے وہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے چلے گئے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے. دیکھ لو یہ انداز قرآن کا اتنا خطرناک ہے کہ مال غنیمت اکٹھا کرنے گئے تھے. مال غنیمت کس کو کہتے ہیں؟ کہ مسلمان اور کافروں کے درمیان کی لڑائی ہو، اس لڑائی میں مسلمانوں کو کافروں کے جو ساز و سامان حاصل ہوتے ہیں اس کو مال غنیمت کہتے ہیں.
तो सहाबा कोई दुनिया कमाने नहीं गए थे, तो लूट मार करने नहीं गए थे, वो माल गनीमत लाने गए थे। उन्हें लगा कि जंग जीत चुके हैं, जंग के आखिर में माल गनीमत इकट्ठा होता है, लेकिन अल्लाह ने उसको दुनिया कह दिया। तो अंदाजा लगाए कि आखिरत की तलब और आखिरत की चाहत में हमें कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। उस माल गनीमत को इकट्ठा करने वालों को अल्लाह ने कहा कि तुम्हें के बाद दुनिया चाहिए, और जो तीर अंदाज वहां से हिले नहीं कि नहीं अल्लाह के रसूल का हुक्म है कि जब तक मेरा दूसरा हुक्म नहीं है तो उनसे हटेगा नहीं। उनके बारे में अल्लाह ने कहा तुम्हें के बाद आखिरत चाहिए। ये आयत करीमा दुनिया के अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं उसको खत्म करती, जो डाउट जिसको कहते हैं। आप लोग चूंकि दुनियावी काम में ज्यादा रहते हैं, हम लोग चूंकि एक महदूद जगह पे रहते हैं, तो हम लोग दुनिया के बारे में उतना ज्यादा अच्छा नहीं बता सकते जितना आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आपके ताल्लुकात में जो लोग हैं, मिलने जुलने वाले, उठने बैठने वाले, तो दुनिया को बहुत करीब से देख रहे हैं। लेकिन हम लोग की जिंदगी उतनी ज्यादा नहीं है दुनियावी एतबार से, बहुत ज्यादा हम लोग महदूद जगह पे रहते हैं, एक महदूद जिंदगी हम लोग गुजरती है, परिवार, मस्जिद, मदरसा और जिंदगी खत्म, सीधा कबर, और ज्यादा कुछ नहीं हम लोग। लेकिन हम बेहतर जानते हैं कि आप लोग कुछ ज्यादा इल्म है दुनियावी एतबार से। जिस माल गनीमत को हुक्म हुआ है कि जंग के खात्मे के बाद मुसलमान अपनी तहरीर और अपनी कस्टडी में ले ले, उस माल गनीमत के बारे में अल्लाह ने सहाबा से कह दिया कि उनमें से बात दुनिया चाहते हैं। अब अंदाजा लगाएं कि आखिरत का हुसूल, जन्नत का हुसूल, जन्नत में जाने की ख्वाहिश जो है जो लोग रखते हैं, उन्हें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। आप अंदाजा लगाएं कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अल्लाह ने कहा कि इन्नल लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तक़ल जमआन, बेशक तुम में से उस दिन जिस दिन दो जमातों की मुठभेड़ हुई, यानी मुसलमानों और काफिरों की मुठभेड़ हुई, जंग ओहद के बारे में है, बहुत से लोगों ने पीठ फेर लिया। इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतान बिबादि मा कसबू, और उनकी बात करतूत की वजह से शैतान उनको फिसला दी। सहाबा की बात हो रही है, सहाबा की बात हो रही है कि उनकी कुछ ऐसी नाकामियां या कुछ ऐसी बदआमालियां होंगी जिसकी वजह से शैतान ने उनको फिसला दिया। हालांकि नबी उस वक्त जिंदा थे, नबी हयात से थे, नबी साथ में थे, नबी के साथ रहने के बावजूद भी सहाबा के अंदर की कमी कैसे पैदा हुई? इसका मतलब ये है कि शैतान जो है हमेशा कोशिश में लगा हुआ है। हम जरा सा मौका देंगे वो मौका नहीं देगा, हमें बर्बाद करने का, हमें बहकाने का, हमें गुमराह करने का। शैतान का जो काम है, शैतान की जो लश्कर है, शैतान की जो फौज है, उसकी जो टीम है, वो हमेशा पीछे हमारी लगी हुई है। जरा सा डिसबैलेंस हुआ बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, थोड़ा सा जिसको हम माइनर समझते हैं, जो ये आयत करीमा बता रही है। सहाबा के बारे में अल्लाह ने कहा कि उनकी बात अमाली करतूत की वजह से शैतान ने उनको फिसला दिया। तो सहाबा वो थे जो नबी के बाद सबसे मुबारक शख्सियत थी इस रोए जमीन पर। उनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि उनको शैतान ने फिसला दिया, तो हमारे आमाल तो नहीं है, तो अब सोचिए कि हमारे साथ क्या हो सकता है। ये अंदाजा लगाए तो जरा सा हमने मौका दिया तो शैतान हमें मौका नहीं दिया। आगे अल्लाह ने बयान किया वलकत अफल्लाहु अन्हुम, लेकिन फिर अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। सहाबा के बारे में जो ओहद के अंदर शरीक हुए थे, अल्लाह ने कहा कि थोड़ी सी तकलीफ उनको पहुंची शिकस्त के हाथ सूरत में, यही उनकी सजा थी, यानी ड्रॉ हो गया था। तो जो शिकस्त ना पता हुई ना शिकस्त हुई, क्योंकि मुसलमान तो फतह हासिल करने गए थे, बदर के फतह से उनका हौसला बड़ा बुलंद था, उन्हें लगा कि इंशाअल्लाह ताला ओहद का भी फतह हो जाएगा। लेकिन जो ड्रॉ हुआ यही उनकी सजा थी कि वो संभल गए कि कुछ ना कुछ जो है गलतियां हमसे हुई है, फॉल्ट है कुछ। अल्लाह ने कहा कि वलकत अफल्लाहु अन्हुम, लेकिन अल्लाह ने उनको दरगुजर कर दिया, माफ कर दिया। इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और हलीम में बुर्दबार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सिफात को बयान कर रहा है कि अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। तो हाँ, वो सहाबा थे तो उनको अल्लाह ने माफ कर दिया, उन्होंने वापस बैक हुए, अपने अमाल को सुधारा, उसको ठीक किया। लेकिन मेरे भाइयों, हम कब ऐसे बनेंगे? इतनी ज्यादा हमारे ऊपर दीन की बातों का आना और असर ना करना, ये हमारे बदअकीदे की और बदईमानी की एक दलील है। अच्छी बात हम पे असर नहीं कर रही। हमारे अंदर एक और चीज, सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें हर कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, हर कोई, जो कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन सबको पास करेगा, कौन जन्नती है कौन जहन्नमी। लेकिन हम पे एक चीज ये आ गई है कि मतलब कि ये कहा जाता है कि गुनाह से इस कदर भी नफरत ना करो कि तुमको हर आदमी अपने सामने गुनहगार नजर आने लगे। ये भी एक मामला है कि हम सही है वो गुनहगार है, हम सही वो गुनहगार है, हम गलत हो ही नहीं सकते। सहाबा के बारे में अल्लाह ने बयान कर दिया कि उनमें से बात दुनिया चाहते
सहाबा के बारे में अल्लाह ने कह दिया कि शैतान ने उनको फिसला दिया उनके बुरे अमाल की वजह से। तो हमें हमारे बारे में अल्लाह क्या कहे, जो कि ना जाने कितनी गलतियां और खामियां ना जाने हम लोग करते रहते हैं। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 156 156 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, ऐ ईमान वालो तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने कुफ्र किया। ये भी देखो, काफिरों की मुशाबिहत से मना किया जाए, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने कुफ्र किया। यानी क्या है कि ऐसा नहीं कि अगर हम काफिर हो जाएंगे तो ये आयत हमारे ऊपर फिट होगी कि हाँ काफिर मत हो जाओ, नहीं, उन लोगों की तरह ना हो जाना, ला तकूनू कल्लज़ीना कफरू, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने कुफ्र किया, इनकार किया अल्लाह का। यानी काफिरों के अंदर जो चीजें हैं, जो उनकी कल्चर है, जो उनकी तहजीब है, जो उनकी रस्म रिवाज है, हमें उसको नहीं अपनाना किसी सूरत में। और यहाँ पे एक बात और याद रखें कि जो जमीनी हकीकत है क्या होता है कि चूंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इस्लाम धर्म है और कोई नहीं, और यहाँ सब लोग माशाल्लाह मिलजुल के रहते हैं, एक ही सोसाइटी में, एक ही समाज में, एक ही मुआशरे में रहते हैं। अब ऐसे में अक्सर ये चीज़ें सवालात के तौर पर आती हैं कि आया हम एक ही जगह रहते हैं तो उनके जो पूजा पाठ या त्यौहार है उसमें हम शिरकत नहीं करते, लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें आती हैं उसको हम कैसे मना करें। यानी एक अजीब फीलिंग सी होती है कि वो बुरा मान जाएंगे, अगर हम इनकार कर रहे हैं तो बुरा मान जाएंगे। ये सवाल पैदा ही क्यों होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, सवाल पैदा क्यों होता है, क्योंकि हमने उस मुआशरे में तबलीग नहीं की। सबसे बड़ी चीज़ यही है, वो उस मुआशरे में है, वो आपको अपने दिन के बारे में कोई चीज़ें दे रहा है, हमने क्या दिया उसको अपने दिन के बारे में। आजकल एक मुआशरे में कई लोग रहते हैं, सिर्फ खाने पीने तक रिश्ता बना हुआ है, उनके कुछ बना तो हमारे यहाँ आ गया, हमारे कुछ बना तो वहाँ चला गया। ये कभी नहीं महसूस किया गया कि दावत अल्लाह उन तक पहुँचाया जाए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। जब रिलेशन अच्छा है, हमारे घर में उठना बैठना हो रहा है, ये तो अल्लाह बेहतरीन मौका दे रहा है दावत का कि भाई हम कुरान की सुबह तिलावत करते हैं, आप आए सुने। त्यौहार तो कभी कभी आता है, साल भर तो नहीं रहता त्यौहार। दावत ना देने की वजह से आज हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ये सवाल पूछना पड़ता है कि वो गुस्सा हो जाए क्योंकि हमने वो काम नहीं किया। अब चूंकि नहीं, लेकिन गुस्सा तो होंगे, जाहिर सी बात है। और एक माहौल बना के हम रखेंगे, दावत और तबलीग में लगे रहेंगे, कुरान की बात हदीस की बात बताते रहेंगे, तो वो आपको खुद ही नहीं देंगे, आपसे पूछेंगे, वो इस तरीके से पेश आएंगे कि देखिए हम देना चाह रहे हैं लेकिन सोचे पहले पूछ लिया। इस तरह के लोग कहते हैं, देखिए हम देना लेकर आना चाह रहे थे, घर वाली बोल रही थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं पहले हमसे पूछ लिया। तो क्या कहते हैं, ये रुख ही बदल जाएगा अंदाज सवाल का। तो मेरा यही मानना है कि हमने वहाँ पे काम नहीं किया, काम करने से काम होगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दाऊद दीन देकर अल्लाह के रसूल को भेजा, अल्लाह के रसूल ने सहाबा ने उसके बाद इस तरीके से हम तक पहुंचा। इसमें हमारा एक बहुत अच्छा किरदार और रवैया और अखलाक भी होना चाहिए, कि रोल भी होना चाहिए कि चूंकि अल्लाह ने ताल्लुकात दिए गैर मुस्लिम भाइयों का, उसको हम काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल करना चाहिए यकीनी तौर पर। इसलिए कि कुरान इतनी असरअंदाज किताब है कि हर उमर फारूक किसी सख्त आदमी को पिघला दिया, और ऐसा पिघलाया कि बिल्कुल मोम हो गई है कि नहीं। कुरान की वजह से, कुरान की बरकत है, कुरान की है लगाव और चाहत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उमर फारूक जैसे सख्त दिल इंसान को, कठोर कभी जमाने में हुआ करते थे, तो बिल्कुल नरम हो गए। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन वही बात कहा कि उन लोगों की तरफ मत जो लोग काफिर हैं, काफिरों की तरफ जिंदगी मत गुजारो। अल्लाह ने जो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा इनाम हमें और आपको दिया है वो है हिदायत। ये हिदायत बड़े बड़े लोगों को नहीं मिली। फिरौन के पास कमी थी किसी चीज की, दुनिया की कमी थी, कुछ कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं दी। इतना पैसा फिरौन के पास, इतनी को उसने कह दिया कि रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, मुझे मानो, लेकिन उसके पास वो दौलत नहीं थी जो हिदायत को खरीद सके। और अल्लाह ने ये दौलत हमें और आपको अता फरमाई। आगे अल्लाह ने बयान किया, वक़ालू लिइख्वानिहिम इज़ा ज़रबू फिल अर्ज़ि औ कानू गुज़्ज़न लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू। अल्लाह ने कहा कि ऐ ईमान वालो, तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन लोगों ने कुफ्र किया और अपने भाइयों से कहा, जो जबकि वो जमीन में सफर कर रहे थे या गजवा लड़ रहे थे, क्या कहा, लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू, अगर तुम हमारे पास होते तो ना मरते और ना ही कत्ल किए जाते। गज़वा उहद में जब बहुत सारे सहाबा मारे गए, वही जो तीरंदाज हट गए और खालिद बिन वलीद जो थे वो दुश्मन के लश्कर में थे, उन्हीं की हिकमत थी कैसे इनको पस्त करना है, दिमाग उन्हीं का था।
जब यह मामला हो गया उसके बाद तीरंदाज जो है बहुत काफी तादाद में मारे गए साहबा, काफी साहबा मारे गए, शहीद कर दिए गए। जब ऐसा मामला हुआ तो अब्दुल्ला इब्न उबई जो रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार उस वक्त था, वो मुसलमान बनकर मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमान की सफों में था। इस तरह के जो है और भी बहुत सी शख्सियात थी। अब वो क्या कह रहे हैं, जख्म पर मरहम के बजाय नमक लगाना जिसको कहते हैं, किसी को जख्म लगा है तो मरहम लगाएंगे ना, मरहम पट्टी करेंगे ताकि जख्म ठीक हो जाए, ना कि नमक लगाएंगे। इस तरह के लोगों ने क्या कहा कि अगर तुम हमारे पास रहते ना, कत्ल नहीं किए जाते, क्या जरूरत थी जाने के लिए जंग में या उधर निकलने की, ना जाते, देखो हम लोग बच गए। उनके घर वालों को जा कहते थे, कह रहे तुम्हारा हस्बैंड आज हुआ ना शहीद, तो हमारे पास रहता मना किए उसको, मत जा मत जा, लेकिन समझा नहीं बात को। अरे हम लोग बहुत दूर की सोचते हैं, आजकल ऐसा होता है नहीं समाज में, ऐसा ही होता है माशरे में, हम लोग दूर की सोचते हैं लेकिन कदर नहीं करता हम लोगों की। हमने मना किया था मत जाओ मत जाओ, लेकिन गए। अल्लाह ने उसका नक्शा खींच दिया यहाँ पे कि ऐ ईमान वालों तुम उन लोगों की तरह ना हो देना जिन लोगों ने कुफ्र किया और अपने भाइयों से कहा जबकि वो जमीन में सफर कर रहे थे और जिहाद कर रहे थे और कानू गुजर गजवा में थे, लव कानू इंदना, अगर तुम हमारे पास होते माँ तो तुम कत्ल ना किए जाते, तुम मरते नहीं, तुम कोतिल हो नहीं, तुम कत्ल कर दिए जाते। लियन अल्लाह ज़ालिका हसरत फी कुलूबिहिम, ये वो इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों में इसका हसरत को सबब बना दिया, अल्लाह ने उनके दिल में डाल दिया, सबब बना दिया। इसलिए कि सहाबा के दिल में जन्नत थी, इनके दिल में दुनिया था। उनकी हसरत क्या थी, दुनिया हासिल करना। अल्लाह ने उनके दिल में ये चीज पैदा करी, ख्याल पैदा कर दिया। कहने लगे कहा नहीं जाते तो ठीक रहता, देखो हम नहीं गए बच गए। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं है, ये जिस चीज को बचना बचना कह रहे हैं, मौत जो है ये अगर मजबूत कीलों में चल जाएगी तो इनको मौत आ जाएगी, ये अगर मजबूत कीलों में चल जाएंगे तो भी इनको मौत आएगी। ये क्या सोच रहे, घर में रह के तो बच गए, अब वो चले गए जहां में तो मर गए। ऐसा बहुत बहुत मौका हुआ है कि एक आदमी कार एक्सीडेंट करके बच गया, एक आदमी नॉर्मल मौत मर गया। मौत है, आनी है, आके रहेगी, कोई इसे छुटकारा नहीं पा सकता, बच नहीं सकता। तो इन्होंने मौत के बारे में यह कहा कि अगर तुम हमारे साथ होते ना तो ना तो तुम मरते और ना तुम कत्ल यानी शहीद यानी जहाद में मारे जाते, कत्ल किए जाते। तो अल्लाह ने कह रहा है, अल्लाह कह रहा है वलिया जल्लल्लाहु ज़ालिका हसरतुन फी कुलूबिहिम, तो अल्लाह ताला ने ये हसरत उनके दिल में पैदा कर दिया। किस बात की हसरत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत। हम किसी एक चीज से जिसका नाम मौत है, हम नफरत करके क्या कर सकते हैं, हमारी इच्छा हो चाहे ना मौत बात रही है ना। कोई चीज है जिसमें ऑप्शन है, वो चीज ले भी सकते हैं ना भी ले सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन मौत एक ऐसी चीज है कि हमारी ख्वाहिश हो चाहे ना हो, हमारी मर्जी हो चाहे ना हो, हमारी चाहत हो चाहे ना, मरना तो है, हर सूरत में मरना है। और ये कह रहे हैं कि अगर तुम हमारे पास होते लौकान ना, अगर तुम हमारे पास होते माँ माते तुम मरते नहीं, माँ कोते और ना ही कत्ल किए जाते। मौत के बारे में एक शायर ने कहा है, गुजर गया जो एक दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। ये वो हकीकत है कि मरेगा आदमी, हर आदमी कुल नफ्स जाएगा मौत, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। और इसी मौत को पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शायर जॉन एलिया, उन्होंने भी मौत की अच्छी तारीफ की है कि नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। ये मौत है कि जिससे हमें हर दम याद करने की जरूरत है कि हम मोमिन है, मोमिन मौत से गाफिल नहीं हो सकते। याद रखिए, ये मोमिन के शान और पहचान है कि मोमिन कभी भी एक सेकंड के लिए मौत से गाफिल नहीं हो सकता। जैसे वो अपने बाल बच्चों को नहीं भूल सकता एक सेकंड के दिमाग से, अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूल सकते एक सेकंड के लिए, अपने कारोबार को नहीं भूल सकते, उसी तरह मौत को नहीं भूल सकते, क्योंकि कब आएगी गारंटी नहीं ना है। एक फिक्स होता है कि 2026 से तो दूसरा नहीं बचा हुआ है, यहाँ तो फिक्स नहीं, कब आ जाए कोई गारंटी नहीं। आगे अल्लाह कह रहे मौत और जिंदगी के बारे में, वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ही वो जात है जो जिंदगी देता और मौत देता है। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। तुम कैसे कह दिए कि अगर तुम हमारे पास होते तो तुमको मौत ना आती, तुम कत्ल ना किया, तो कैसे तुमने कह दिया वल्लाहु युहयी व युमीत, अल्लाह ही जिंदगी देता है, अल्लाह ही मारता है। मारने वाला और जिलाने वाला कौन है, अल्लाह तबारक व तआला है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और जो भी तुम काम कर रहे हो, अमल कर रहे हो, अल्लाह उसको देख रहा है। बसारा उर्दू में कहते हैं देखने को, उसी से बसीर, अल्लाह ताला देखने वाला, अल्लाह की सिफत है बसीर।
اللہ रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम अमल कर रहे हो, अल्लाह उसको देख रहा है। फिर आगे अल्लाह कह रहा है आयत नंबर 157 157 सूरह आले इमरान, अल्लाह ने क्या कहा, वला इन कुतिलतुम फी सबीलिल्लाह और मुत्तुम, अगर तुम अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दी जाओ यानी शहीद कर दिएगा, और मुत्तुम या अल्लाह के रास्ते में नॉर्मल मौत ही मर जाओ, लमगफिरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन, तो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए रहमत है और मगफिरत। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। अगर कोई शहीद कर दिया जाए जंग में, जिहाद में, या अगर कोई मर जाए तो अल्लाह कह रहा है मगफिरतुम मिनल्लाहि व रहमा, अल्लाह की तरफ से मगफिरत है ऐसे शख्स के लिए और रहमत है, और ये रहमत और मगफिरत खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो कुछ वो जमा कर रहे हैं उससे बेहतर है। समझे अल्लाह क्या कहना चाह रहा है? देखिए अल्लाह क्या कहना चाह रहा है कि अल्लाह के रास्ते में मौत हो जाए या शहीद हो जाए या नॉर्मली मौत मरे, लेकिन हमारी मौत इस्लाम की हालत में हो, दीन इस्लाम की हालत में हो, इस हालत में हो कि हम लाइफ टाइम अल्लाह को एक ही मानते थे कि अल्लाह एक ही, इसके अलावा कोई नहीं, वह भी मौत हो, तो रहमत और मगफिरत अल्लाह की, अल्लाह की तरफ से है। हम किस चीज़ से बेहतर है रहमत और मगफिरत? जिस चीज़ को वो जमा कर रहे उससे बेहतर है। दुनिया में क्या होता है, देखिए एक प्रैक्टिकल बात देखिए, दुनिया में होता क्या है। हालात ऐसे हैं मुसलमानों के कि मुसलमानों से एक मस्जिद नहीं बन रही अल्लाह की, अल्लाह का घर मुसलमान नहीं बना, अपना घर बना रहे। सोचिए, सोचने वाली बात, हम सोचते नहीं, अपना घर कैसे भी हम बना ले रहे हैं, चाहे जो भी सूरत हो, लेकिन जब बात अल्लाह के घर की आ रही तो एक फॉर्मेलिटी है कि ढलाई करने में 2000 दे तो बस करना, बात उससे ज्यादा कुछ नहीं। और घर सबसे अफजल घर है, इस रोए जमीन पर सबसे बेहतर घर कौन सा है? अल्लाह का घर है। हमारे रात सबसे बेहतर है, चाहे जितना अच्छा एयर कंडीशन 4 सीलिंग का काम करवा ले, बिल्कुल 5 स्टार होटल बनवा ले, अपना घर 7 स्टार करवा ले, लेकिन उससे बेहतर घर कौन सा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। और हम कितना योगदान कर रहे हैं घर के लिए? हम दूसरों पर डिपेंडेंट है, खाली हम ही देंगे, वो लोग खाली हम ही दे। जब जन्नत दिखाई जाएगी क़यामत के दिन तो सब तो नहीं बोले खाली हम ही जाए, लोग नहीं जाएगा, नहीं अल्लाह हमको पहले ले ले, बाद में छोड़ लोगों, उन लोगों का मसला हमको नहीं जानना, हमको पहले जन्नत में दाखिल कर। कई मामला होगा इधर जहन्नम भी तो है, उधर दिखलाई जाएगी क़यामत के दिन मैदान महशर में, अल्लाह इन लोगों को छोड़, पहले मुझे दाखिल कर जन्नत में, मैं इनका जिम्मेदार नहीं हूँ। लेकिन दुनिया में क्या होता है कि हम ही अकेला मोहल्ले में रहते हैं, ये हाल है, प्रैक्टिकल बात। उन चीजों से बेहतर है जो जमा कर रहे हैं, यही सब चीज हम जमा कर रहे हैं, क्या? प्रॉपर्टी, रुपया, पैसा, दौलत, शोहरत, हम इसी के पीछे भाग रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में गुजर जा रही है, एक दिन हम भी गुजर जा रहे हैं, इनमें तो कोई चीज हमें हमारे साथ नहीं रहा है। हैरत की बात यह है कि एक बेवफा के लिए इतनी मेहनत, ये दुनिया क्या है? बेवफा है। ना इज्जत हमारे साथ जाएगी कब्र में, ना शोहरत हमारी कब्र में जाएगी, ना हमारे साथ हमारी कब्र में हमारी प्रॉपर्टी जाएगी, कुछ नहीं जाएगी, यहाँ तक कि आल औलाद तक नहीं जाएगी, तनाई जाना है। ये जो चीज हम जमा कर रहे हैं, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, अल्लाह कह रहा है ये उन चीजों से बेहतर है क्या? अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मग़फ़िरत। मग़फ़िरत क्या है? अस्तग़फ़िरुल्लाह, इस्तिग़फ़ार, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से मग़फ़िरत करें, क्योंकि हम उरूज से ज़वाल की तरफ आ चुके हैं, आ नहीं रहे हैं, आ चुके हैं। यह हकीकत है मुसलमानों की। लेकिन मुआशरे के अंदर कोई गरीब तबका है, यतीम है, मिस्कीन है, कोई औरत बेवा हो जा रही है, तो ये कोई नहीं कहता, पॉजिटिव कोई नहीं है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, अजीम। हमारे क्या बातें होती है, वो चाचा बच्चा है, औरत बेवा हो गई, उनकी औलाद है, सब छोटे छोटे हैं, नेगेटिव है। क्यों? उसके दिमाग में पहले से कुछ नहीं करना है, हमको अपना देखना है। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा थे, आपको मालूम है कैसे वो खिलाफत किए? उनके जमाने में ज़कात लेने वाला कोई नहीं था। कोई किसी के पास गया गवर्नमेंट का, भैया ज़कात आप लीजिएगा हमसे, भाई आप ज़कात आप हमसे लीजिएगा, हम निकाल लेंगे, तो ले लीजिए। कैसी हुकूमत किए, कैसी मुसावात हुए, कैसे अदल हुए। एक आदमी दुनिया से गुजर जा रहा है तो आदमी ये भी कह रहा है कि टेंशन की बात नहीं, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है, जो है खिलाएंगे तुमको, फिक्र मत करना, जो मेरा बच्चा खाएगा तुम खाओ। लेकिन ऐसा नहीं हमारा माशरा। हमारा माशरा 2-3 घंटे तक आंसू बहा रहा, उसके बाद कहानी खत्म, अब अपना देखिए अपना देखिए। अल्लाह ने इतना दुनिया में उलझा दिया, इतना उलझा दिया है कि निकल ही नहीं पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा। जो चीज को तुम जमा कर रहे हैं उससे बेहतर अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत। ऐसे बहुत से मंजर आपको देखने के मिलेंगे
कि हमारा पड़ोसी बिना इलाज के मर गया और हमें ये लग रहा है कि रात को हार्ट अटैक हुआ तो मर गया। नहीं, उसको जरूरत बहुत पहले से थी, मदद की जरूरत थी उसको, हमने ध्यान नहीं दिया। तो खाता भी नहीं था, रात में खाने का एक्टिंग करता था, दांत को बजाता था कि लगे कुछ चबा रहा है, बर्तन को जानबूझकर अपने किचन में गिरा देता था कि लगे कि बर्तन धोते वक्त उसकी बीवी के हाथ से बर्तन छूट गए, हाथ और लोग बर्तन धो रहे थे। ऐसे भी खुददार इंसान हमारे समाज के अंदर है। पड़ोसियों के बारे में इतनी नसीहत अल्लाह के रसूल ने की कि सहाबा को लगा कहीं अल्लाह के रसूल ये ना कह दे कि अपनी प्रॉपर्टी जायदाद मेरे पड़ोसियों को दो। आज ऐसे मुआशरे का हिस्सा बने हुए हैं कि हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ आदमी मर गया, अल्लाह ने इस काबिल बनाया कि जिसकी जिंदगी बचा सकते थे, लेकिन हमें लगा कि नहीं, उसकी जिंदगी से बेहतर मेरा पैसा कहीं खत्म हो गया था, कहीं खत्म हो गया था, कैसे आएगा, बड़ी मेहनत से कमाएगा। उस मुआशरे का हिस्सा हमारा बने हुए। अल्लाह से दुआ करें जो अल्लाह के नबी की दुआ थी कि हमेशा फजर की नमाज पढ़कर अल्लाह को क्या दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअन, अल्लाह तू हमें नफा बख्श इल्म दे, ऐसा इल्म दे जिससे फायदा और नुकसान ना हो, और रिज़्क़न तय्यबन, हलाल रिज़्क दे, पाकीज़ा रिज़्क दे, व अमलन मुतक़ब्बलन, और जो अमल में कर रहा हूं अल्लाह हमें वही अमल करने की तौफीक दे जो अमल को कबूल करता है। कभी भी अल्लाह के रसूल ने दुनिया को नहीं माना, दुनिया के अंदर मकाम को नहीं माना, रुपया पैसे की कभी तलब अल्लाह के रसूल की एक दुआ नहीं मिलती जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुपया पैसा मांगा, कभी नहीं। रिस्कन तय्यबन में सारी चीज आ गई, हलाल रिस्क दे, जो रिस्क मिलेगी। ऐसा नहीं कि अमीर बनना गलत है, पैसा कमाना बात तो गलत समझिए, ये मना नहीं किया जा रहा है कि नहीं हमको अमीरी नहीं चाहिए, बल्कि जो गलत बात है, अल्लाह अमीर क्यों बना रहा है, उस माशरे के गरीब को देखने की। अल्लाह अपना एजेंट रखा हुआ हर माशरे में, एक गरीब तबका है, वहां 50 आदमी को अल्लाह ने मालदारी दे दी, पकड़ो सबको देखो, तो तुम्हारा काम है। जिस चीज को वो जमा कर रहे हैं उससे बेहतर अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत, तो रहमत और मग़फ़िरत कैसे मिलेगी अल्लाह की, यही सब कार्य खैर से मिलेगी ना। आज देखिए मुसलमानों के हालात, चर्च में मुसलमान जा रहे हैं, या जिस धर्म के अंदर, जिस दिन के अंदर सबसे ज्यादा चैरिटी के बारे में बयान किया गया है, आज उस कौम के लोग चर्चों में जा रहे हैं, नाम अपना आधार कार्ड दे रहे हैं, वो अंग्रेज भी पढ़ रहे हैं, वो ईसाई भी पढ़ रहे हैं कि फला मोहम्मद अहमद खान, और वो वहां से राशन दे रहे हैं, तो क्या सोचेंगे। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क पड़ने वाला है भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों, हमने मालदारी मांगी, अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह ने इनकार नहीं किया। अगर हमने हक अदा नहीं किया अपने मातहतों का, याद रखिए कब्र की बड़ी मुश्किल जिंदगी है। जिंदगी को आसान बनाना है तो लोगों की आसानियां पैदा करें, तलाश में रहें, गुरबा गरीब कहाँ है ना। ये भी लॉजिक हमारे यहाँ है कि फकीर चल के आएगा तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं, है कि नहीं, गलत है। दरवाजे में आए तो देंगे, नहीं आएगा तो नहीं देंगे, खोजेंगे नहीं, तलाश नहीं करेंगे, ढूंढने के टाइम कहाँ ढूंढने का, अरे टाइम रहेगा तब ना ढूंढेंगे, टाइम रहेगा तो ना ढूंढेंगे, टाइम ही नहीं हमारे पास। क्या काम है भाई हमारा दिन भर, खैर के काम के लिए हमारे पास वक्त नहीं, भलाई के काम के लिए। आज इस सारे मुआशरे का हिस्सा हो, आज हमारे मुआशरे में भेदभाव, जात पात, देखिए ना, खान बिरादरी की लड़की अंसारी में शादी नहीं करे, एकदम हड्डी से हड्डी मिलना चाहिए, खान से खान, अंसारी से अंसारी। मुसलमान होना काफी नहीं है, ये किसने तय किया ये फॉर्मूला, क्या अल्लाह ने तय किया, क्या रसूल की हदीस है, साफ सुथरी बात है। सैयद बिरादरी, लड़की सैयद बिरादरी की होनी चाहिए, लड़का भी सैयद बिरादरी का होना चाहिए, जो उसकी वो होना चाहिए। इस्लाम काफी नहीं है भाई, वो मुसलमान नहीं, मुसलमान का बहुत बड़ा काम कर देगा, मुसलमान में ये बिरादरी कुछ चाहिए, बिरादरी इंपॉर्टेंट है, इस्लाम इंपॉर्टेंट है। हमने दो तरह का दीन अभी दुनिया में चल रहा है, एक वो दीन जो अल्लाह के रसूल लेकर आए थे, एक वो दीन जो हमने बनाए थे। अल्लाह ने कहा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, ये अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत उन चीजों से बेहतर है जिसको जमा कर रहे हैं। तो दुनिया जमा ना करे, कोशिश करे कि अल्लाह हिसाब में आसानी हो, खूब सदका खैरात करे, बढ़ चढ़ कर करे, बहुत मजा आएगा मेरे भाइयों। आपकी मदद से अगर कोई परिवार खुश हो गया, हंस दिया आपकी मदद से, यकीन जाने आप बहुत खुशकिस्मत अल्लाह की है। एक आदमी है सोनू सूद, जानते होंगे, वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं, उसके पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके अंदर एक चीज है, क्या है, चैरिटी। सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया। आप अपनी दरखास्त में जमा करें, वो आपके लिए खड़ा है, उसको मजा आता है, फायदा नहीं उसको इसमें इंटरेस्ट, उसको अच्छा लगता है किसी की मदद करना। ये चीज तो हमारी नबी की तालीम में से है।
हमारी मदद से कहाँ चली गई? कौन परेशान है, चुपके से जाके मदद करके चले आए, पते ना चले कौन दिया, कैसे काम हो गया। अब देखिए ना 12-13 हजार के लिए मस्जिद में ऐलान करना पड़ रहा है कि आदमी का ऑपरेशन है और 12-13 हजार की जरूरत है। अब मुसलमान सब, ये हमारा सवाल आ चुके सवाल की तरफ, आना नहीं है। अब सवाल से भी और नीचे क्या होता है, अल्लाह मिलकर जाएंगे उधर जाएंगे। तो हम अपने इस माल का सही इस्तेमाल करें, हम कोशिश करें कि अल्लाह हमसे इतना काम दुनिया में देंगे। रख कर क्या करेंगे बैंकों में, क्या करेंगे रख कर, कब चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह जो दिया है उसको, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में मुख्तसरन जानते हैं। ये उस्मान गनी से भी ज्यादा मालदार थे, ये समझ लें। हमें लगता है कि उस्मान गनी सबसे ज्यादा सहाबा में मालदार थे, नहीं। उस्मान गनी को किसी छोड़ दिया नहीं। कौन थे? अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब हिजरत करके मदीना गए, मक्का से सब कुछ छोड़ के मक्का के अंदर चले गए मदीना, तो वहां गए तो मदीना के जो सहाबा थे, मुसलमान थे, उन्होंने ऑफर किया कि देखिए हमारे 2 बागीचे, 2 बिल्डिंग है, एक आप ले ले, हमारी 2 बीवियां हैं, आप कहे तो किसी एक को तलाक देकर आपसे निकाह कराने की आसान नहीं था, उस वक्त कोई लड़की देता नहीं, इस्लाम और कुफर का मामला था। ये खुददार टाइप का है, मैंने कहा कि नहीं मुझे सब नहीं चाहिए, बारक अल्लाह, अल्लाह आपको बरकत दे। आप ही बताइए कि बाजार का खुददारी इसको कहते हैं। बाजार गए और वहां पे लकड़ियां जंगलों से काटते थे और बाजार में फरोख्त करते थे। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई बाजार में, आप मदीने के बाजार में आप जायजा लेने के गए तो देखिए अब्दुर्रहमान बिन औफ दुकान लगाकर फुटपाथ पर लकड़ियां बेच रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा अब्दुर्रहमान खैरियत से है? सब खैरियत तो है? कहा अल्लाह के रसूल खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि बारक अल्लाह, अल्लाह तुमको बरकत दे तुम्हारे कारोबार में। इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई कि उनका सामान जो था 2 मरतबा आता था, एक असर के बाद एक इशा के बाद मदीने के अंदर। और जब उनका सामान आता था, माल जो ऑर्डर होता था आता था मदीने में, तो मदीने की औरतें अपनी खिड़कियों को खोलकर देखती थी अब्दुर्रहमान का माल है, देखने के लिए कितने माल आया है। और सब उस्ताद खड़े रहते थे, और माल उतरा और खाली, माल उतरा और खाली, यानी कि उसको स्टॉक कर दिए गोडाउन में, उतरा और सब उस्ताद लेके निकल लिए। पैसा हाथ में आया, बांट कर खत्म। असल में जो पैसा आया मगरिब तक नहीं बचा, इतना पैसा। खोजते थे, जगह जगह खोजते थे, कहाँ खर्च कर सकते, बेहतरीन जगह कहाँ है। एक चीज हमारे क्या में कुर्बानी में हम लोग गोटा जानवर क्यों नहीं करते, तो उतना गुस्सा का आदमी बहुत कम। अरे आप दीजिए ना, बहुत गरीब है, 10 तो देवा कम पड़ गए, बहुत मोहताज आदमी है। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं घर में 4 आदमी का परिवार, इसीलिए आधा कर लिए हैं, उतना गुस्सा हो। अरे कैसे, क्या बात है, क्या अल्लाह आपको सिताब दिया 50 कीजिए जानवर कुर्बानी, देने वाले कभी नहीं, देने वाले की कभी बढ़ जाएगा पूरा, है कि नहीं। अब्दुर्रहमान बिन औफ का जब माल उतरता तो मदीने की औरतें अपने दरवाजे खिड़कियों को हल्का सा खोल कर देखती थी कितना माल आ रहा है। असर में माल उतरा, माल सब सेल हो गया, पैसा भी खत्म, हाथ में कुछ नहीं, कुछ नहीं। एशा में आया, सब उस्ताद माल लेके चले गए, पैसा हाथ में आया, सब बांट दिया। अजवाज मुतहरात को वजीफा देते थे, वो साहबी रसूल वजीफा देते थे, जो नबी की बीवियां हैं उनको 2000 दिरहम, उनको 4000 दिरहम का पाए देती हो। जगह तलाश करते थे, कहाँ खर्च कर सकते, जगह बहुत है, तलाश करने की जरूरत। ऐसा नहीं, सब ठीक है। तो मेरे भाई की चैरिटी बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने अगर नवाजा है तो उसको अल्लाह के रास्ते में दे, अल्लाह आपको इतना देगा कि आप थोड़ा भी नहीं, इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का वादा है। खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जिस चीज को जमा कर रहे हैं, तो हम लोग इसी चीज को जमा कर रहे हैं, हम लोग इसी चीज के पीछे लगे हैं, उसको जमा कर रहे हैं। आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस की पल की खबर। तो हमें क्या चाहिए, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत। अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत है। जो लोग उम्रा हज के लिए गए होंगे वो बताते हैं कि सूरी बात है, हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है कि हज के अय्याम में एक कंटेनर आया फिर जूस का, कुछ जांच के लिए बढ़ गया, छतरी का धूप है, कुछ जांच के लिए। अल्लाह वाले कंटेनर के कंटेनर भर के ट्रक पे ट्रक खाना बढ़ रहा है, छतरी बढ़ रहा है, जूस बढ़ रहा है। वो कैसा जज्बा उनके अंदर कि एक कंटेनर खर्च करेंगे 1 करोड़ रुपया खर्च होगा, वो पैसा नहीं देखते, मेहमान आए, अल्लाह के मेहमान है, ये मौका है खर्च करने का, हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। तो ये चीज हमारे अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम एक सिस्टम बनाए, एक टीम बनाए, और इस चीज बैतुल माल का निफाज तो हर मोहल्ले में होना चाहिए। आज हमारे बैतुल माल है ही नहीं, और हालात ऐसे ना होने की वजह भी है कि जो लोग टीम में आ रहे हैं वो 1 साल भी नहीं चल रहा, घपला हो जा रहा है, मामला कंप्लीट हो गया। ईमान वैसा नहीं, वैसा ईमान बनाने की जरूरत है। फिर आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 158 158, वला इन मुत्तुम, अगर तुम मर जाओ, और कुतिल तुम, या कत्ल कर दिए जाओ, ला इलल्लाहि तुशरून, लौटना तो अल्लाह ही है।
लौट के जाना कहाँ है? जमा अल्लाह की तरफ होंगे, लौट के अल्लाह की तरफ जाना है। तो मेरे भाई तो जाना अल्लाह की तरफ है, ये बात हम भी जानते हैं कि अल्लाह की जो बनाई दुनिया कहाँ भागे, कहीं नहीं भाग सकते, पूरा बाउंड्री अल्लाह करके रखा हुआ है, कहीं नहीं निकल सकते, मरेंगे और अल्लाह की तरफ चले जाएंगे। तो जब अल्लाह की तरफ जाना है तो हमारी तैयारी भी वैसी होनी चाहिए कि जब जाए तो शर्मिंदा ना, जब जाए तो अफसोस ना, जब जाए तो डर ना, बस ये हो कि हम नेक अमाल कर जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको क्या है इंशाअल्लाह ताला कबूल करें। आगे अल्लाह ने कहा आयत नंबर 159 159 फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, ये बड़ी बेहतरीन आयत है। देखिए फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम, ए नबी आप अपने रब की रहमत से उन लोगों पर बड़े नरम दिल हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत बयान की जा रही है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नरम दिल, बड़ी नरमी थी उनके अंदर, बहुत नरम दिल थे, बहुत नरम दिल। हदीस के अंदर आता है कि शर्माने में, शर्म और हया में नई नवेली दुल्हन की भी ज़्यादा शर्मिंदे थे हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस के आज जब नई नवेली दुल्हन कैसे शर्माती है, पहली बार जब शौहर से सामने आती है तो उससे भी ज़्यादा शर्मिले थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप नरम दिल भी थे, अपने रब की रहमत से अल्लाह ने आपको खुसूसियत दे रखी थी। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम, आप अपने रब की रहमत से बहुत उन लोगों के नरम दिल, इन लोगों के सहाबा थे, बड़े नरम दिल थे। वलो कुंत फज़्ज़न, अगर आप बदजुबान होते, गलीज़ल क़ल्ब और सख्त दिल होते, लनफज़्ज़ू मिन हौलिका, ये आसपास के जो लोग आपसे छट जाते। दो चीज यहाँ पे अल्लाह ने बयान किया, अगर हमसे भी हमारे दोस्त छट जा रहे हैं, हमसे हट जा रहे हैं, क्या ताल्लुकात और रिश्तेदार हमारे करीब नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है? इसकी दो वजह है। एक क्या है? बदजुबानी। ये जुबान जो है बहुत खतरनाक चीज है। इस जुबान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया है सही इस्तेमाल के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए नहीं। अल्फाज से भी इंसान को चोट लगता है कि नहीं? लफ्जों का भी तीर जो होता है वो इंसान को जख्मी कर देता है, और लफ्जों के तीर से जाने कई रिश्ते कतल हो गए, कई ताल्लुकात मर गए। किससे? जुबान से, लफ्ज से, लफ्जों के तीर से। जो फॉर्मूला अल्लाह ताला ने यहाँ बयान किया वो हम सबके लिए। अल्लाह ने कहा कि लौ कुंत फज़्ज़न, ऐ नबी अगर आप बदजुबान होते, गलीज़ल क़ल्ब या सख्त दिल होते, तो दो चीजें हैं कि अगर आज हमसे हमारे अपने नहीं, कोई हमारे साथ रहना नहीं चाहता, कोई बैठना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता, इसकी वजह क्या है? या तो हम बदजुबान या तो सख्त दिल। सख्त दिल इंसान से भी इंसान पसंद नहीं करता। सख्त दिल जानते हैं, दिल का सख्त होना, मोहब्बत ही नहीं करेंगे किसी से, किसी से हम लगाव ही नहीं रखेंगे, ऊंच नीच के हम फर्क रखेंगे। सख्त दिल है, सख्त दिल किसको बोलते हैं? है ना, जब पढ़ने में आया था कि असल मुनाफिकत ये है कि गरीबों पर चिल्ला उठते हैं और अमीरों के सामने चुप हो जाते हैं, ये असल मुनाफिकत है। कमजोर मिल गया तो उसको अच्छा से उसको चढ़ जाएंगे, हाँ तुम इसे बोल रहे हो। अगर मजबूत मिल गया तो बस हवा टाइट, नहीं आप तो ठीक है माशाल्लाह, अरे बहुत सुनो बैठी ना, ये असल मुनाफिक है, ये असल मुनाफिकत है कि कमजोरों पर चढ़ जाना, और आज अपने बराबरी के ताकतवर कोई मिल जाए तो अपने आप को काबू में कर लेना, नहीं ठीक है आप तो अच्छे हैं, ये असल मुनाफिकत है। अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ने बयान किया, अगर आप बदजुबान होते या सख्त दिल होते तो क्या होगा? लनफज़्ज़ू मिन हौलिका, जो आपके अदराक में जो सहाबा है या फिर रिश्तेदारियां आपके ताल्लुका सब छट जाएंगे। इंसान बदजुबानी को और सख्त दिल को पसंद नहीं, याद रखें। इसीलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें बदजुबान ना करे, है ना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूलू कौलन सदीदा, ऐ ईमान वालों जब बात कहो तो दुरुस्त है, अच्छी बात है, सच्ची बात कहो। अपने जुबान से कोशिश करो कि कोई ऐसा लफ्ज ना निकल जाए जिससे क्या है किसी को तकलीफ पहुंच जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की हदीस है कि तुम में से जो कोई भी अल्लाह और यौम आखिरत ईमान रखता हो उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे वरना खामोश रहे। क्यों कहा गया कम बोलो? क्यों? जरूरत नहीं है बोलना, ज्यादा नहीं बोलना है, बिला वजह बोलना नहीं है। बोलने से क्या होगा, दो अल्फाज निकल जाएंगे और आपको किसी को तकलीफ हो जाएगी तो आपके खाते में बुराई लिखी जाएगी। और कम बोलेंगे ठीक है, कम बोलेंगे तो ठीक है। आगे अल्लाह ने बयान किया फाफु अन्हुम, ऐ नबी आप उनको माफ करो, वस्तगफिर लहुम, उनके लिए इस्तिगफार करें, वशाविरहुम फिल अम्र, उनके लिए मामलात में मशवरा करें। यहाँ पे जो लफ्ज है वशाविरहुम फिल अम्र, मामलात में मशवरा करें, ये मशवरा बहुत बड़ी चीज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई मकाम पर, कई मौके पर सहाबा से मशवरा करते थे, चाहे खैबर का मौका हो, चाहे हुनैन का मौका हो। नबी होने के बावजूद भी ये नहीं सोचते थे कि मैं नबी हूँ, मैं क्या मशवरा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा क्या करते थे? हमें भी चाहिए कि मैं शौहर बीवी से क्यों पूछूंगा, है ना, चलता है ना,
हम कमा रहे हैं नहीं तो सर पे चढ़ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। बीवी से, माँ से, बाप से, भाई से मशवरा करे, मशवरा में बड़ी बरकत है। अल्लाह ने नबी को कहा कि शाविरहुम फिल अम्र, आप मामलात में नबी एक दूसरे से मशवरा करें। और फइज़ा अज़मता फतवक्कल अल्लाह, और जब मशवरा कर ले, मशवरे में एक बात आ जाए तो बात आने के बाद पक्का इरादा कर। जैसे यहाँ पे एक डिस्कशन हुआ कि ये काम करना है, कैसे किया जाए, मुख्तलिफ तरह की राय रखी गई। किसी ने बोल दिया कि ये करना है, पक्का हो गया कि ये कंफर्म हो गया, ये बात पर अमल करना है। फइज़ा अज़मता, अगर पुख्ता इरादा हो जाए, फतवक्कल अल्लाह, तो अल्लाह पर भरोसा कर। ये चीज हम लोग से मिस हो गई। पक्का इरादा करने पर हम निकल पड़ते हैं, एक चीज छोड़ देते हैं। क्या मशवरा हुआ, एक मशवरा निकल के आया, अब हमें क्या करना है, अल्लाह ये मशवरा निकल कर आया है, भरोसा तेरे ऊपर, कामयाब नाकाम करने वाला तू है, पक्का अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे तो मदद करेगा। फतवक्कल अल्लाह, भरोसा कर ले अल्लाह पर, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को पसंद करता है जो तवक्कुल करते हैं अल्लाह पर, जो अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद करता है। तो वो आयत भी हमें तवक्कल अल्लाह का वहस हो, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। अजान हो रही है, हमको एतराज नहीं है। इमाम साहब, सवाल ये था कि जैसे कि आपने बताया कि चलो मैं कभी ये दुनिया के लिए दुआ नहीं की वैसे, लेकिन चलो मैं एक दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। तो इसके मुतालिक क्या कि इसमें दुनिया भी आ रहा है? और देखिए सवाल ये है कि दर्स में बात गुजरी है कि अल्लाह के नबी ने कभी दुनिया नहीं मांगा है, लेकिन अभी बता रहे थे दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। तो दुनिया का लफ्ज है, तो फिर ये क्या मतलब दोनों मिसमैच कैसे है? देखिए दुनिया से मुराद आज की तरह मुसलमान का दुनिया नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुनिया थी, अली के बारे में बताया ना कि अपनी दाढ़ी को पकड़ के दुनिया को कहते थे, दुनिया को धोखा नहीं दे सकता, या अल्लाह मुझे दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल में ना डाल, या अल्लाह मुझे दुनिया कभी भी धोखा नहीं दे सकती, मेरे ईमान इतना मजबूत बना के दुनिया का बाकाव भी ना चाहे। मतलब क्या मतलब, रह रहे दुनिया में, खा रहे दुनिया ही के अंदर, जी रहे दुनिया में, नमाज भी दुनिया में पढ़ रहे हैं, तो फिर दुनिया को ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि उमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर कि दुनिया की जिंदगी नहीं मगर धोखे का साजिश सामान, ये धोखा कहीं हम खाना है। क्या है धोखा? पैसा आने के बाद इंसान के अंदर एटीट्यूड आने लगता है, अल्लाह पैसा दे लेकिन तकब्बुर ना दे, ये है दुनिया से पनाह मांगना। तो अल्लाह के नबी ने मांगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन, ऐ अल्लाह तुम्हें दुनिया में बेहतरीन जिंदगी अता फरमा। बेहतरीन तुम्हारा क्या था कि दुनिया में रिज़्क खाए तो हलाल खाए, दुनिया में इबादत वक्त पर करे, दुनिया में हमेशा अल्लाह की रज़ामंदी वाला काम करे, वो काम करके जिससे अल्लाह राज़ी होता है। ये चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया मांगते थे। हम लोग जो दुनिया मांगते हैं, देख लें क्या हालात है हमारे कि दुनिया हासिल होने के बाद हमारे रवैये, हमारा तौर तरीका, हमारा अखलाक, बिहेवियर सब के सब शरीयत इस्लामिया के बरखिलाफ हो जाए। वो दुनिया के बारे में लिखा है कि वो दुनिया में नहीं चाहिए, हमें मालदारी चाहिए, लेकिन उस्मान गनी वाली मालदारी चाहिए जो कुआं आज़ाद करवा दे। मालदारी हम भी मालदार बनना चाहते हैं, जब माल दे तो वो ईमान भी उस्मान गनी बना कि खर्च करने का जज्बा हो। आज क्या हो रहा है बताया ना हमने कि बगल का आदमी बगैर इलाज के मर गया, हमको लगा कि हार्ट अटैक से मरा, लेकिन पैसा नहीं था, रात दिन चिंता फिक्र लगा मेरा इलाज कैसे होगा, हमारा पैसा बैंक में रखते रखते पड़ गया, एक आदमी मर गया। वो बात क्यों नहीं याद है? जिसने एक आदमी की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई, क्यों नहीं समझते? ये वाली बात आयत नंबर 56 से 52 में आपने फरमाया कि अल्लाह ही मारता है और अल्लाह ही जलाता है। मारना तो नहीं है, जलाना तो नहीं है, जिंदा करना, जिलाना का मतलब जिंदा करना। इस दौर में दीन पे दिलचस्पी कम होता जा रहा है, उसको कैसे मैंने थोड़ा बहुत है भी तो कभी कभार रील्स देख लिए ये कर लिए, लेकिन वो हाँ सही बात है, एक्चुअली ये होता है, लेकिन वो किताबें पढ़ना और कुरान को तर्जुमा से पढ़ना, नमाज तो ठीक है मेजोरिटी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही हो रहा है, इसको कैसे? लेकिन सवाल ये कि दीन में दिलचस्पी कैसे पैदा की है ना, कि हर चीज़ में आजकल क्या होता है कि आदमी को रुझान कहीं और चला जाता है, जबकि हमारी शौक ज़ौक और दिलचस्पी जो है दीन इस्लाम पर होनी चाहिए, उधर चल इधर क्यों नहीं? देखिए ये तो एक ऐसा सवाल है जो मतलब लॉजिकल सवाल है
कि हम कैसे दीन में अपने आप को राग़िब करें, ऐसा कि हम उधर हमारा ध्यान रहे, ध्यानियत रहे, शौक रहे, इधर ना हो दुनिया की तरफ। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं दिलचस्पी ना पैदा होने की। कोई भी चीज़, घर हो, बिल्डिंग हो, इमारत हो, कामयाबी हो इंसान की, उसकी एक बेस बुनियाद होती है। बुनियाद हमने जिस चीज़ का डाला वही चीज़, अगर मान लीजिए हम अमरूद के दरख्त का बीज लगाएंगे तो कौन सा दरख्त पैदा होगा? अमरूद ही होगा, आम तो होगा नहीं। हम अमरूद का बीज लगा के आम की उम्मीद रखें कैसे होगा? हम बीज लगा दिया अमरूद का, अमरूद फल गिरा, बोले आम का नहीं, कैसे होगा बताइए? नहीं समझे? बेस हम लोगों ने नहीं दिया, बुनियाद। अब जैसे दीन की शुरुआत कहाँ से? अल्लाह के रसूल ने कहा अपने घर से पहले शुरू, पहले शुरुआत हमारे घर से होनी चाहिए थी। हम घर में ना शुरू करके मुआशरे में शुरू कर देते हैं। आप देखिए भाई नमाज पढ़ी, भाई आप आइए, भाई आप वहाँ आइए। घर में तो किसी को नहीं, दिलचस्पी कैसे पैदा होगी? घर का माहौल तो ठीक ना है, माहौल बना है हर जगह। घर का माहौल ठीक हो जाएगा तो ऑफिस का ठीक हो गया तो यहाँ का, जहाँ जहाँ हम जाते हैं हमारे मिलने जुलने वाले हैं, इन सब में एक माहौल मिलना चाहिए। हमें वो माहौल नहीं मिलता है, समझ रहे हैं? किसी दर्श हो रहा है ना, एक हफ्ता में एक दिन हो रहा है, जब आप लोग बैठते होंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा, आज भी अच्छा सुनने को मिलेगा। लेकिन जैसे यहाँ से उठ के निकलते होंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये शौक खत्म। फिर जब जुमा आएगा तब थोड़ा सा शौक फिर जगेगा कि हाँ कल दर्स है, इसको कंटिन्यू करना है, तभी तो दिलचस्पी पैदा होगी। रील में दिलचस्पी कैसे पैदा होगी? डेली देखते हैं आप, हफ्ता में एक दिन देखिए, दिलचस्पी पैदा नहीं होगी। आज रील देखिए, फिर अगले शनिचर को देखिए, मजा नहीं आएगा। डेली देख रहे हैं आपको अच्छा लगेगा, कल भी देखेंगे। डेली तो दूर की बात है, दिन दिन भर देख रहे हैं, है ना? इसको भी दीन में दिलचस्पी पैदा करने के लिए हम लोग देखिए आलिम लोग क्यों मतलब इतना दीन में लगे रहते हैं, दर्स तकरीर क्यों? मालूम है, मदरसे के लाइफ से ही 24 घंटा हम उसी माहौल में रहते हैं। 24 घंटा शुरुआत होती है फजर की नमाज से, उठे नमाज पढ़े फजर की, फजर के बाद पढ़ने का सिस्टम मदरसे मस्जिद में, सब बच्चा नमाज पढ़ के कुरान पढ़ेगा, चाहे वो सीनियर बच्चा हो, ऊपर क्लास के, चाहे नीचे क्लास का, कुरान पढ़ने एक माहौल बन गया। अब वहाँ से उठ के जाते हैं, 6:30 बज जाता है, 7:30 से क्लास है। अब बरस किए, धोए, खाए के फिर क्लास में चले गए। क्लास में गए तो काल अल्लाह काल रसूल की किताबें पढ़ाई जा रही थी और कुछ नहीं है वहाँ पे। पढ़ते पढ़ते 12 बज गया, 12 बजे जोहर का वक्त हो गया, नहाए धोए जोहर नमाज पढ़ने चले गए। नमाज पढ़े, मेस में गए, खाना खाएं, खाना खाने के बाद कल की जो भी हदीस, चलिए आपको सोना है हल्की सी, सो लिए। असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़िए, जाइए बाहर भी। असर के बाद जो सामान आपका सरफ साबुन जो भी लाना है खाने पीने का, असर से मस्जिद के बीच में आपको छुट्टी मिलेगी, गेट खुला रहेगा, आइए। फिर मगरिब बाद किताब लेकर मस्जिद में बैठ गई, मगरिब तो 24 घंटा उसी माहौल में। और एक दिन नहीं 10 साल, पूरी 10 साल जब मदरसे की लाइफ गुजारते हैं तो 10 साल उसी माहौल में रहते हैं। तो हम लोग को चीज क्या है, दिलचस्पी ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है। वो माहौल बनाना होगा। गैप जो हो रहा है ना, गैप सही नहीं। दर्स हो गया, घर में क्या करें, कोई नहीं है, तकरीर लगा दे किसी मुस्तनद आलिम की, उसको बजाय उसको लिए माहौल बना के सबकी बैठ के सुनेगा। या हम में से एक आदमी एक हदीस पढ़े, उसका तर्जुमा करे, वो हदीस किसी आलिम से सीख ले, तो भाई कल हमको अपने घर में दर्स देना है और समझ के सुना दे घर वालों को। गैपिंग से दिलचस्पी पैदा नहीं। यही वजह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का जो तरीका था स्कूल चलाने का, उन्होंने डिजिटल फॉर्मेट पर बहुत बड़ा काम किया। जैसे उनका स्टेज क्यों इतना खर्च करते? बहुत से लोग बोलते हैं ये सब तो गरीबों से पैसा लेके जिंदा लेके इतना महंगा हमने स्टेज लगा रहे हैं। नहीं, उनकी सोच बहुत आला थी। जो दिखता है वही बिकता है, लोग देख कर आएंगे क्या है भाई पीछे, इतना खूबसूरत, एक अलग से शौक पैदा करें उनके अंदर। बड़ी सनाउल्लाह मदनी साहब के साथ हम कई सालों से राब्ते में, हम लोग बीच में फरवरी में बिहार में गए थे प्रोग्राम में, तो मौलाना सनाउल्लाह मदनी तो नहीं के दायरे पढ़ाते थे, डॉक्टर जाकिर नाइक की ऐसी सी बात वो बताते थे जो सुनने के बाद अजीब लगता था। जैसे उनका जो प्रोग्राम पीस टीवी पे आता था, तो उस पीस टीवी के प्रोग्राम के पहले प्रोड्यूसर आता था, मेकअप मैन आता था, वो लोग तैयार होते थे, यहाँ थोड़ा सा पाउडर कमी है, उसको कट अंदर लेके मेकअप रूम में पाउडर सही लगा है, बिल्कुल वो उस जमाने में बताते थे सनाउल्लाह मदनी कि आज से 15 साल पहले वो कैमरा यूज करते थे जो फिल्मों में कैमरा इस्तेमाल होता था। इतना महंगा कैमरा क्यों? पब्लिक को, मतलब उसको अट्रैक्शन के लिए, पब्लिक ना चाह कर भी मतवज्जो हो, दिलचस्पी ले। कट होता था उसमें, प्रोग्राम चल रही, लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ, प्रोड्यूसर के इशारा कट, मतलब बंद। जब तक पूरा रिकॉर्डिंग सही नहीं उठेगा तब तक अपलोड नहीं होगा। तो ये उन्होंने प्रोग्राम का काम, दिलचस्पी ऐसी पैदा होती है तो उसको बिल्कुल सिस्टमेटिक और ढंग से किया जाए। एक दो ऐसे मेकअप मैन का नाम बताएं सनाउल्लाह मदनी जो आज फिल्मों में मेकअप करते हैं, हीरो हीरोइन की।
उनको वो बुलाते डॉक्टर साहब खर्च करके, वो लोग आते थे, वो उनका मकाम था, वो उन्होंने काम किया है कि आज वो सब सिखा सिखाया है। इसीलिए जब हम लोग किसी चीज़ का रिकॉर्डिंग करवाते थे बिहार में किसी मदरसे के ताउन के लिए, तो ये सब कैमरा पे भड़क गए, समझना मतलब क्या मामूली छोटा बड़ा कैमरा लेकर आया, हम लोग वो सब कैमरे में बैठने वाले हैं, बस इसे लेके हो जाएगा, नहीं होता है, डायरेक्ट लिखना होगा, डायरेक्ट लिखो, बताओ क्या बोलना है, तब हम बोलेंगे, तब समझ में आएगा सामने वाले को कि हाँ कुछ रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो दिलचस्पी पैदा करने के लिए उसको एक सिस्टम बनाना, हमें दिन रात उसमें लगना होगा, इसी वजह से दिलचस्पी पैदा नहीं हो रही है। जुमा से जुमा वाला काम चल रहा है हमारे मोहल्ले में, है ना, आज जुमा पड़े तकरीर सुन, अब एक हफ्ता बाद सुनने को मिलेगा, पता लगा है कहाँ दर्ज का एहतमाम हो रहा पहुंच जाए। मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा, याद रखिए, बगैर मेहनत के हासिल नहीं होगा। दिलचस्पी पैदा करने के लिए हमें चीजों को जरूर बजरूर अमल में लाना होगा। में एक दो सवाल थे बाद में फिर बोल रहे हैं। बड़ा सवाल नहीं, थोड़ा सा उसको मतलब वो नॉर्मल से सवाल है कि आयत नंबर पूछा गया और सूद के बारे में पूछा गया। सवाल बोल दीजिए, मैं मिल जाएगा, वो नॉर्मल से सवाल है। आयत सूद के बारे में ना, सूद के बारे में और एक आयत पूछा, हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जो दो सवाल है इंशाल्लाह ताला हम व्हाट्सएप कर देंगे, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। ऐसे एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, बहुत दफा देखते हैं हम लोग के रास्ते में गुजर रहे हैं, वो रोड के इस पार, हम लोग रोड के इस पार, ये दूर है तो सलाम करने के वक्त अमूमन काफी दफा जो है सलाम नहीं बोलते, बस इशारा करने से सामने वाला भी इशारा कर देता है। हाँ, तो ये कहाँ तक जो है ठीक है। सलाम, हाँ सलाम के बारे में है कि जैसे कोई दूर पे है, डिस्टेंस पे है, काफी दूरी पे है, तो कितना का नजर आ जाएगा, या रोड किस तरफ है, दूसरा आदमी रोड को उस तरफ है। अब क्या होता है कि वहीं से आदमी ऐसे करता है अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, तो बीच से हाथ करके, तो उधर से कभी ऐसे करता ही जाता है, बोलता है ऐसा बात नहीं, वालेकुम सलाम बोलता भी है, लेकिन उतना आवाज जाएगा ही, इसलिए वो जोर लगाता भी। हाँ, मुंह से बोलते हैं वालेकुम सलाम, तो कहाँ तक सही है। तो देखिए, आप तो सलाम ना क्या जब एक दूसरे से मिले तो सलाम करो, आप तो सलाम पहले आपस में सलाम फैलाओ, ये अच्छी चीज है। तुम में से हमेशा खैर वही रहेगा जो सलाम में पहले करेगा। असल मसला है कि क्या वो हाथ उठाकर या इतना दूर से करना, इसमें एक चीज है, देखिए अगर उस तरफ हम जा रहे हैं, उनसे मुलाकात हो जाएगी, तो दूर से सलाम ना करें, आवाज दे दे, हाँ फला साहब रुक जाए, आप जाकर मिले और सलाम करें। अगर लग रहा कि नहीं है, रूट ही उल्टा है, हमको उधर जाने को इधर जाना है, तो आप इशारत में सलाम कर सकते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, ये वक्त की जरूरत है। इसको करीब में भी ना बनाए, जैसा कि करीब में भी हो रहा है, आप गुजर रहे, कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, सलाम वालेकुम चले गए, ऐसा नहीं होता, ये तरीका नहीं है, ये दूर के लिए किया गया है, दूर के लिए। हाँ, दूर है, उस तरफ है, आप इस तरफ है, आप उधर जाना, आप इधर जाना, मिलना है तो सलाम ना करें, आगे मिल के सलाम करें। कई कई दफा तो सिर्फ मुंडी ही था, मैं भी वही बोल रहा था। दे दिया था, आयत नंबर पूछा है, ठीक है, ठीक। दर्स के इख्तिताम के ऐलान किया जाता है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम लोग के हाजिरी को कबूल करें, परवरदिगार आलम तो हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे। जो भी भाई जो भी बहन जिस तरीके से जिस मामले में फंसे हुए लाल आलमीन उनकी आसानी पैदा फरमा और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन वाक़ दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।